सभी का स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर आज की सुर्खियों पर। गणेश पर्व और मुहर्रम पर्व को लेकर पार्टी में शांति समिति की हुई बैठक। साहिली साई मंदिर में सजे भव्य शिव दरबार में सांसद ने सपरिवार लगाई हाजिरी। शिक्षक दिन पर दमनदेव के भीमपुर पाठशाला के इंचार्ज प्रिंसिपल को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का दिया जाएगा अवार्ड। पार्टी में महावीर स्वामी की निकाली गई थी भव्य यात्रा। अब समाचार विस्तार से। आने वाले गणेशोत्सव और मुहर्रम पर्व को लेकर पार्टी नगर पालिका के सभाखंड में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई थी। आने वाले गणेश पर्व और मुहर्रम त्योहार को ध्यान में रखते हुए पार्टी नगर पालिका के सभाखंड में मामलतदार, पालिका प्रमुख, PSI, JB इंजीनियर, विविध मंडल के प्रतिनिधि साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आने वाले गणेश चतुर्थी महोत्सव और मुहर्रम त्योहार जो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, उसके लिए कानूनी सख्त कार्यवाही अमल में रखने के लिए और गणेश विसर्जन में शराब का सेवन नहीं करने के लिए, साथ ही मूर्ति की हाइट मर्यादा मुजब रखने के लिए दरेक मंडलों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, साथ ही पार्टी पंथक में से कई मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है तो उस समय पुलिस बंदोबस्त किया जाएगा। पालिका प्रमुख फाल्गुनी बेन भट्ट और बांधकाम अध्यक्ष गजानन मांगेला ने बताया कि इस साल POP की मूर्ति भी बिठाई गई है, जो आने वाले सालों में कोई भी POP की मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जाएगा और उनके सामने कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। इस अवसर पर उप प्रमुख विपिन भाई पटेल, कारोबारी अध्यक्ष देवेंद्र शाह, कार्यकारी BJP प्रमुख राजेश भाई पटेल और पालिका के सभ्य बिलालवाड़ा बैंक के चेयरमैन शरद भाई देसाई, पुलिस स्टाफ इत्यादि उपस्थित रहे थे। તમારા લેવલ ઉપર તમારે જે છે સ્થાપનાના દિવસથી માંડીને છેલ્લે વિસર્જન સુધી તમારી પોતાની એમની મૂર્તિને દરિયામાં વિસર્જિત કરો, એટલે કઈ બી એમ પનિશમેન્ટ રાખવું જોઈએ। એમાં POP ની મૂર્તિઓ મહેરબાની કરીને આ વર્ષે નહીં તો આવતા વર્ષથી આપણે કોશિશ કરીએ કે આપણે માટીની મૂર્તિઓ રાખીએ। આવતા વર્ષે આપણે બધા પ્રતિજ્ઞા આ વખતેથી પ્રતિજ્ઞા લઈએ કે આવતા વખતે આપણે પાર્ટી સહિત કોઈના 1.5 દિવસના ગણપતિ છે, કોઈ 5 દિવસના, કોઈના 7 દિવસના, 11 દિવસ છેલ્લે 11 દિવસે વિસર્જન કરે છે। સૌપ્રથમ સૌને વિનંતી છે કે પોલીસ સ્ટેશનમાં આવીને એપ્લિકેશન આપી જાય, રજીસ્ટ્રેશન કરાવી જાય, જેથી પોલીસને ખબર પડે કે કેટલા ગણપતિ જેની સ્થાપના થઈ છે, જેથી પોલીસ બંદોબસ્ત વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવી શકે। અગત્યની સૂચના એ છે જ્યારે પણ વિસર્જન માટે નીકળવાનું હોય છે ત્યારે ખાસ કરીને પાડી 4 રસ્તા ઉપર ડીજે ઉપર લોકો ખૂબ જ નાચતા હોય છે, એવા સમયે પોલીસને એટલો સહકાર આપે કે ટ્રાફિક નિયમન સુવ્યવસ્થિત રીતે ચાલુ રહે પર આવે છે તો પછી કડક હાથે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। આપ સૌને વિનંતી છે કે આ પર્વમાં આપ સૌનો સહકાર એટલો જ મળે, સૌ ડિસિપ્લિનથી વર્તે અને કોઈ ઝઘડો તકરાર થાય નહીં, સારું વાતાવરણ ત્યાં તહેવાર પૂરો થાય। આજરોજ પાડી નગરપાલિકાના સભાખંડમાં શાંતિ સમિતિની બેઠક રાખવામાં આવી। આવનાર તહેવારો ગણપતિ અને મુહર્રમના તહેવારોને ધ્યાને રાખીને આ સમિતિની મિટિંગ આજે લેવામાં આવી, જેમાં મામલતદારશ્રી, PSI શ્રી અને નગરપાલિકાના સદસ્યો, પત્રકાર મિત્રો અને મંડળના બધા મિત્રો હાજર હતા। આજ રોજ શાંતિ અને સૌહાર્દથી આ તહેવાર ઉજવાય અને કોઈ પણ બનાવ ન બને, પ્રદૂષણ ન થાય એ બધું ધ્યાન રાખીને આ તહેવાર ઉજવવાનું સલાહ સૂચન આપવામાં આવી છે, રૂટ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે અને DJ વગાડવાના કાયદા જે કાંઈ છે તે રૂલ ની માટે ચર્ચા કરવામાં આવી આજે।
અને ખાસ કરીને તો આપણે બાળ નદી જે આપણા જીવાદોરી સમાન છે પાણી માટે આપણા ગામને અને બીજા ગામોને પણ પાણી પૂરું પાડે છે, તો તેમાં પ્રદૂષણ ન થાય એની માટે પીઓપીની મૂર્તિ જેમ બને તેમ આવતા વર્ષથી આપણા પારડી નગરપાલિકાએ નક્કી કર્યું છે કે અને લાઈફ સેવિંગ ટ્રસ્ટ માંગેલા લાઈફ સેવિંગ ટ્રસ્ટે પણ નક્કી કર્યું છે કે સાથે મળીને અમે એ મૂર્તિનું વિસર્જન નહીં કરવા દઈએ, જેથી દરેક મિત્રો જે મંડળના છે તેઓ માટીની મૂર્તિ જ લાવે, આવો સૌનો આગ્રહ છે. મેન હાઈટ બી ખાસ કરીને મોટી માટીની મૂર્તિ આવશે એટલે સ્વાભાવિક છે કે હાઈટનો પ્રોબ્લેમ પણ સોલ્વ થઈ જશે. પીઓપીની મૂર્તિ ઊંચી બને છે પણ માટીની મૂર્તિઓ એટલી મોટી ઊંચી બની શકતી નથી, એટલે આપણો એ પ્રોબ્લેમ પણ સોલ્વ થશે, જેથી અનબનાવ પણ ન બને, આપણું પાણીનું પણ પ્રદૂષણ ન થાય. અને આ સાથે હું એ પણ લોકોને આગ્રહ કરું છું કે આપણે મોટી સંખ્યામાં બધા લોકો ત્યાં આગળ ભેગા થઈએ છીએ. નગરપાલિકા દ્વારા ખૂબ સરસ આયોજન કરવામાં આવે છે. साइली स्थित साई मंदिर में सजे भव्य शिव दरबार में सांसद मोहन भाई डेलकर ने सपरिवार लगाई थी हाजिरी. साइली स्थित साई मंदिर में सजे भव्य शिव दरबार में सांसद मोहन भाई डेलकर ने अपनी धर्मपत्नी कलाबेन एम डेलकर के संग हाजिरी लगाई. इस दौरान सांसद ने महादेव के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा लोक कल्याण की कामना की. पवित्र श्रावण माह में नवशक्ति महिला मंडल दादरा नगर हवेली और श्री राम सेवा समिति साइली साई मंदिर द्वारा भव्य रुद्राक्ष 12 फीट का महाशिवलिंग का आयोजन किया गया था. यहाँ पर रोजाना लघु रुद्र यज्ञ, अभिषेक और रुद्राक्ष महाशिवलिंग की शिव पूजा भी हो रही थी. श्रावण माह के अंतिम दिन सांसद मोहन भाई डेलकर ने अपनी धर्मपत्नी कलाबेन एम डेलकर के संग महादेव के दरबार में हाजिरी लगाई. इस दौरान उन्होंने धर्मपत्नी कलाबेन डेलकर के साथ पूजा अर्चना एवं हवन आरती किया और रुद्राक्ष शिवलिंग का जलाभिषेक व दर्शन पूजन कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया. इसी के साथ ही सांसद ने श्रद्धा सबूरी साईं बाबा का भी दर्शन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की. इस मौके पर सांसद मोहन भाई डेलकर, उनकी धर्मपत्नी व नवशक्ति महिला संगठन की संस्थापिका कलाबेन डेलकर के अलावा अन्य वरिष्ठ लोग, नवशक्ति महिला मंडल के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं उनकी पूरी टीम उपस्थित रही थी. शिवाय ओम नमः शिवाय कंकणबन्धनम् आदिकुर्यात् अग्निनारायण स्मरणम् नारायणाय नमः. अग्नि पूजा ब्राह्मणों द्वितीय बलारधे श्री. देखो यहाँ हम लोग भोले बाबा के सामने जो रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाया है वो सावन महीना में पूरा महीना रहा. उसमें हमारे दादरा नगर हवेली के नवशक्ति महिला संस्थापक कलाबेन डेलकर के सहयोग से ये शिवलिंग बना और हमारे जो पूजा के आचार्य हैं शैलेश महाराज जो डोकमड्डी वाले और हमारे यहाँ साईराम सेवा समिति ने पूरा सहयोग किया. और आज पूर्णाहुति हुई. इसमें हमारे लोक लाडीले यहाँ के दादरा नगर हवेली के एमपी मोहन भाई डेलकर भी आए थे. उसके हाथों से समापन हुआ. तो जो दिन पहला दिन जो स्थापना हुई थी कलाबेन डेलकर की ओर से और समापन भी कलाबेन डेलकर और मोहन भाई के हाथों से हुआ. और यहाँ हमारा साईराम सेवा समिति सभी भक्तों गण को अभिनंदन भी देते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि हमको इतना सहयोग दिया और पूरा महीना लोगों ने यहाँ अभिषेक का लाभ लिया और यहाँ पूरा सिलवास दादरा नगर हवेली को आगे बढ़ाए, विकास के पंथ पे लाए. इसी वजह से यहाँ भोले बाबा को बिठाया भी था और लोगों की सुख समृद्धि लोगों को मिले, शांति मिले. यही आशीर्वचन से हम लोगों ने ये रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाया था और पूरी हमारी साईराम सेवा समिति और यहाँ हमारे पूजा के आचार्य शैलेश भाई की पूरी टीम ने बहुत सहयोग दिया. इस साल दमनदीप संघ प्रदेश की ओर से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के तौर पर भीमपुर आश्रम पाठशाला के इंचार्ज हेड प्रिंसिपल की हुई पसंदगी. भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षणविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है. उसी दिन राष्ट्रपति द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का सम्मान भी किया जाता है. इस साल संघ प्रदेश दमनदीप की ओर से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के तौर पर भीमपुर आश्रम स्कूल के इंचार्ज प्रिंसिपल वीरेंद्र भाई पटेल की पसंदगी की गई है. वीरेंद्र भाई को ये अवार्ड आने वाली 5 सितंबर के रोज दिल्ली की अशोक होटल में दिया जाएगा.
अवार्ड के रूप में वीरेंद्र भाई को 50,000 कैश एवं एक मेडल भी दिया जाएगा। अपनी स्कूल के एक शिक्षक के तौर पर बेस्ट टीचर के सम्मान से आश्रम स्कूल का स्टाफ और छात्रों में इसको लेके खुशी की लहर छा गई कि एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मिलने वाले हैं। इस अवसर पर वीरेंद्र भाई ने बताया कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है। इस समय छात्रों में चॉक एंड टॉक पद्धति से उनको सिखाने का समय है, यानी कि स्कूल में हर एक क्लासरूम में प्रोजेक्टर की सुविधाएं दी जाती है और इंटरनेट के माध्यम से, साथ ही प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। साथ ही समय के साथ तालमेल रखते हैं। साथ ही स्कूल में दिए गए शिक्षण विभाग द्वारा ई कंटेंट और टीवी चैनल के माध्यम से विविध शैक्षणिक कार्यक्रमों को छात्रों के मार्गदर्शन के लिए लिया जाता है। वीरेंद्र भाई को मिलने वाले श्रेष्ठ शिक्षक के सम्मान से संघ प्रदेश दमन रोशन होगा। आज ये एवॉर्ड है ते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनना जन्म निमित्ते आखा भारत देश में दर वर्षे जो उत्कृष्ट कार्य शिक्षण क्षेत्रे करे छे एवा शिक्षकों ने सम्मानित करवा माटे राष्ट्रपति पुरस्कार आपवामां आवे छे। साथे साथे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनना जन्मदिन ने शिक्षक दिन तरीके आखा भारत देश में उजववामां आवे छे। अत्यारे भारत देश में डिजिटल इंडिया चाली रह्युं छे અને આજનો જે સમય છે એ ટેકનોલોજીનો સમય છે। આ સમયમાં આપણે વિદ્યાર્થીઓને ચોક એન્ડ ટોક પદ્ધતિથી ભણાવીએ તેમાં વિદ્યાર્થીઓ વધારે રસ લેતા નથી। તેથી ડિજિટલ ઇન્ડિયાને ધ્યાનમાં લઈ દરેક ક્લાસરૂમમાં પ્રોજેક્ટર અમારા ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી આપવામાં આવેલ છે। એ પ્રોજેક્ટર પર અમે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવીએ છીએ। સાથે સાથે અમારી શાળામાં ઇન્ટરનેટની સુવિધા ન હતી, જેથી પ્રોજેક્ટરમાં અમે ઇન્ટરનેટ સાથે કનેક્ટ કર્યું અને જરૂર પડીએ અમે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ચોક્કસ टॉपिक पर एमने भणाववामां आवे छे। साथ साथ बीजो अमारो एक भणाववानो माध्यम है ई कंटेंट। डिपार्टमेंट द्वारा ई कंटेंट आपेलू है और ई कंटेंटना माध्यमथी अमे प्रोजेक्टर पर विद्यार्थीओने यूनिटो भणाववामां आवे छे। अने तीजो अमारो एक माध्यम है टीवी चैनल। शाळामां टीवी चैनल पर आवता एज्युकेशनल शैक्षणिक कार्यक्रमों विद्यार्थीओने बताववामां आवे छे। तेमां पण खास करीने वंदे गुजरात चैनल पर बायसेकना कार्यक्रम आवे छे, तेना पर आवता कार्यक्रमों विद्यार्थीओने अमे नियमितपणे बतावीए छीए। आजे दमण दीवथी मने राष्ट्रीय पुरस्कारनो एवॉर्ड मळवा जई रह्यो छे तेनो श्रेय हूँ अमारा शाळाना शिक्षकों अने विद्यार्थीओने आपું છું, कारण के मारी साथे समग्र कामगीरीमां शाळाना शिक्षकों अने विद्यार्थीओनो सहयोग रह्यो छे અને સાથે સાથે નોન ટીચિંગ સ્ટાફ પણ દરેક કાર્યમાં સહયોગ આપે છે। તો મને જે આ એવોર્ડ મળી રહ્યો છે તે અમારા બાળકોનો છે અને અમારા શાળાના શિક્ષકોનો એવોર્ડ છે। દમણ દીવ જિલ્લાના તેમજ ભારત દેશના શિક્ષકોને એટલું જ કહેવા માગું છું કે વિદ્યાર્થીઓ ડિજિટલ ઇન્ડિયાને લઈને આજે ટેકનોલોજીના જમાનામાં ટેકનોલોજીનો ઘરે પણ ઉપયોગ કરે છે। તો આજે ક્લાસમાં પણ ટેકનોલોજીના ભરપૂર ઉપયોગ સાથે વિદ્યાર્થીઓને ટેકનોલોજીની મદદથી જો આપણે શૈક્ષણિક કાર્ય કરીશું તો વિદ્યાર્થીઓ ઘણા ઇન્ટરેસ્ટ સાથે आ अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सहयोगी थशे अने विद्यार्थीओ बराबर इंटरेस्ट साथे भणशे। समाचारों में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
Krupa Stationery and Xerox welcomes you to a new stationery and gift shop in Dilip Nagar. We have all types of branded schools and office stationery such as Navneet, Domes, Camlin, Classmate, branded office files, box files, diaries, compass pouches, water bottles, tiffin school bags, plastic folders, USB sticks, and all Xerox copies, paper, color print, lamination and Xerox. And also we have all types of gift articles, gift kits, various statues, showpieces, fashionable handbags, purses, crockery, perfume, wrist watches, wall clocks, photo frames, sceneries, decorative night lamps, room sprays, keychains, soft toys and games items like laser lights, batteries, torch, project items like minor motors and also glue gun. All types of birthday items, colorful balloon, candles, caps, etc. all are available at our shop. Please to visit to our shop named Sai Krupa Stationery and Xerox and Gift Shop in Dilip Nagar. के बाद आपका स्वागत है। पार्टी देरासर में जन्म वांचन करा के नगर में महावीर प्रभु की यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। पर्युषण पर्व पार्टी जैन देरासर में प्रवचन के बाद मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर पूजा की थी। जैन देरासर में भगवान महावीर की जन्म कल्याण वांचन उत्सव को मनाया गया था। पर्युषण मुख्य विषय माता त्रिशला ने 14 स्वप्न देखे थे जिसकी वार्तालाप की गई, जिसमें दान, पुण्य, क्षमा आदि का अनुक्रमण किया गया। देरासर में महोत्सव के दौरान जैन समाज के श्रद्धालु भगवान महावीर स्वामी की जय जयकार के नारे के साथ पर्युषण महापर्व की मूर्ति पूजन को मनाया गया। पाडी नगर में बड़ी संख्या में समाज के अग्रणियों से लेकर श्रद्धालुओं ने नासिक बैंड बाजा के साथ यात्रा निकाली थी। जो यात्रा पाडी जैन देरासर से कंसारवाड़ दमनी चापा पहुंची थी और वहां से अनिरा उत्साह देखने को मिला था। नासिक के ढोल नगाड़ों से पाडी नगर गुंजायमान हुआ था। ધીરજ મહાપ્રભુ આજે 5મો દિવસ અને આજરોજ અમાસ અને અમાસના દિને ભગવાન મહાવીર સ્વામીનું આજે જન્મ કલ્યાણક વાંચન કરવામાં આવ્યું પાર્ટી જૈન સંઘની અંદર અને માતા ત્રિશલાને જે 14 સપના આવ્યા હતા તે 14 સપનોની આજે ચર્ચા કરી અને તેના દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી અને આજે જન્મથી ભવ્ય વરઘોડો આજે પાર્ટી નગરની અંદર મહાવીર સ્વામીના જન્મ વાંચન દરમિયાન ફેરવવામાં આવ્યો અને આ પ્રસંગે પાર્ટી જૈન સંઘ અને પાર્ટી તમામ નગરજનો જૈન ભાઈઓ અને બહેનો આજે उल्लासपूर्वक आज वरघोड़ा शामिल किया। दमन में बेस्लोर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आई हुई दिलीप प्लास्टिक कंपनी द्वारा फैलाया जा रहा है धुआं, लोग हो रहे हैं परेशान। दमन के विविध औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित कंपनियां पॉल्यूशन विभाग के कमजोर कार्यवाही के चलते सरेआम नियमों को बाजू पर रख रहे हैं, जिसका जिंदा उदाहरण देखने को मिल रहा है बेस्लोर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आई दिलीप प्लास्टिक नामक कंपनी में। यहाँ पास ही निवासी क्षेत्र हो, दिन रात केमिकल युक्त धुआं निकल रहा है, जिसकी वजह से स्थानिक रईसों के आरोग्य के सामने बड़ा प्रश्नार्थ खड़ा हुआ है, जो कि कंपनी संचालक कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में ऐसे धुएं तो निकलते हैं, ऐसी बिन जिम्मेदार निवेदन दे रहे हैं। कंपनी से निकलता धुआं पूरे दमन को दिखाई दे रहा है, पर दमन पॉल्यूशन विभाग को नहीं, और ऐसी कंपनियों के खिलाफ आज दिन तक कोई कदम उठाए नहीं गए। हाल ही में पर्यावरण नुकसान को पहुंचाने वाले उनके खिलाफ वापी, सीईटीपी और दूसरे एकमों को दिल्ली की एनजीटी द्वारा 117 करोड़ से दंडित किया गया। उसको देखने के बावजूद भी दमन पॉल्यूशन विभाग का पेट का पानी नहीं हिला। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, पर योग्य कार्यवाही नहीं होने की वजह से कई ऐसी कंपनियां लगातार बच रही हैं। तो अब इस समस्या से आने वाले वाहन चालकों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यहाँ लोग जो रह रहे हैं उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो। जल्द ही पॉल्यूशन विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाए, ऐसी लोक आवाज़ उठ रही है।
हुआ तो खराब लगता है। तो फिर क्या कहना चाहते हो आप? क्या बताऊँ, कंपनी वाला है, तुम्हें क्या बताऊँ? कंपनी वाले ने तो क्या बता, तो यानी कि आपके छोटे बच्चे उस पर क्या बीतती होगी? वो तो है ही, नुकसान तो होता ही। तो फिर ये धुआं बंद करना चाहिए कि ऐसे रहना चाहिए? हमेशा ये धुआं चालू रहता है कि? सब चालू रहता है। कौन सी कंपनी से? दिलीप प्लास्टिक। दिलीप प्लास्टिक की है। फैक्ट्री का धुआं निकलता है, वहाँ आपको कुछ तकलीफ होती है क्या? वो तो कुछ खराब ही करता है, खराब ही करता है। फिर यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप क्या समझते हैं वो धुआं निकलता है लीगली है या इनलीगली? कौन से कंपनी से निकलता है? इसमें 2 प्लांट है, कौन सा कंपनी में से निकल रहा है? ये सामने जो निकल रहा है धुआं ही निकल रहा है ना। ICC। तो इस बारे में धुआं बंद हो जाए तो अच्छा है ना। वापी की RS झुनझुनवाला इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल को एजुकेशनल आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से किया गया सम्मानित। वापी की RS झुनझुनवाला इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल ने एजुकेशन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किए गए। दिल्ली की होटल में आयोजित इस समारोह में अतिथि विशेष डेनियल चुबुरू अर्जेंटीना के रिपब्लिक के राजदूत द्वारा दिया गया। वापी, वलसाड़ शिक्षण जगत और RS झुनझुनवाला इंटरनेशनल स्कूल परिवार उसके लिए काफ़ी शुभेच्छा भी दी गई और साथ ही उनका नाम भी रोशन किया गया। 24 अगस्त के रोज दिल्ली की ताज विवांता होटल में एजुकेशन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें वापी की RS झुनझुनवाला अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के प्रिंसिपल ऋचा पी शाह को साल 2019 का इंस्पिरेशनल प्रिंसिपल ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड एनायत किया गया। समारोह में अतिथि विशेष के तौर पर डेनियल चुबरू अर्जेंटीना के रिपब्लिक के राजदूत द्वारा दिया गया था। इस समारोह में शिक्षण क्षेत्र के धनानी हाई मिशन के प्रथम सचिव एरोन नुमोह शिनटीम, एजुकेशन सचिव रिपब्लिक ऑफ सोमालिया के अमल मोहम्मद सैयद, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण अल्बर्ट मारिया लाफेस, CSIO के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर HK सरदाना, एशिया की सबसे छोटी युवा गूगल गर्ल जिया फुटेला के साथ विविध प्रदेशों की प्रख्यात हस्ती बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। आयोजित परिषद में प्रिंसिपल ऋचा शाह ने पैनल डिस्ट्रिक्शन में शिक्षण जगत में नामी हस्तियों के साथ पैनल में शामिल किया गया। उनको की नॉट स्पीकर के सम्मान पात्र के तौर पर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जबकि बेंगलोर में आयोजित भारतीय शिक्षण अवार्ड 2019 के समारोह में भी गुजरात के मोस्ट एस्पायरिंग एजुकेशनलिस्ट ऑफ गुजरात 2019 के प्राइड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दिल्ली में होटल विवांता में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने का मुझे मौका मिला। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज ड्रिवन एजुकेशन पे बेस्ड थी, जहाँ पे देश भर ही नहीं बल्कि विदेशों से भी एक्सपर्ट्स आए थे एजुकेशन से जुड़े हुए। इसमें काफ़ी एकेडमिशियंस थे और इसमें होने वाले पैनल डिस्कशन में मुझे एज अ पैनलिस्ट रहने का भी मौका मिला। तो मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ स्कूल ऑफ रोबोटिक्स टेक्नो प्रोलैब्स का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और ये सम्मान दिया। पैनलिस्ट होने के नाते मुझे एमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशन पे अपने विचार व्यक्त करने थे, जिनमें डीन IIT दिल्ली भी प्रेजेंट थे, दैन अलग अलग एमिनेंट लीडर्स थे एजुकेशन से जो वहाँ पे थे। साथ ही मुझे इंस्पिरेशनल प्रिंसिपल ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो मुझे डेनियल चुबुरू एम्बेसडर ऑफ अर्जेंटीना रिपब्लिक के थ्रू दिया गया। और इस कॉन्फ्रेंस में घाना के फर्स्ट सेक्रेटरी यानी कि घाना हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी भी प्रेजेंट थे, दैन डॉक्टर माला सिन्हा वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो काफ़ी शिक्षा जगत के जुड़े हुए बहुत ही ज़्यादा लोग थे जो कि देश विदेश से यहाँ पे आए थे। डॉक्टर मारिया लोपेस थे जो कि स्पेन से आए थे खास, जिन्होंने हमें एजुकेशन पे बहुत ही अच्छी बातें बताई कि एक इंटरनेशनल स्कूल में क्या बेहतर किया जा सकता है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 18 अगस्त को बेंगलोर में होने वाले कॉन्फ्रेंस का भी मैं एक हिस्सा थी, जो कि ब्लाइंड विक रिसर्च मीडिया ने कंडक्ट किया था। समाचारों के अंत में आइए जाते हैं आज की सुर्खियों पर। गणेश पर्व और मुहर्रम पर्व को लेकर पार्टी में शांति समिति की हुई बैठक। साहिली साई मंदिर में सजे भव्य शिव दरबार में सांसद ने सपरिवार लगाई हाजिरी।
शिक्षक दिन पर दमनदेव के बिम्पोर पाठशाला के इंचार्ज प्रिंसिपल को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का दिया जाएगा अवार्ड। पार्टी में महावीर स्वामी की निकाली गई थी भव्य यात्रा। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।